So please write the chapter's name, chemical bonding and molecular structure. Okay, so chemical bonding and molecular structure. So first of all, let us understand what is a chemical bond. So please write. Chemical bond. In chemical bond, please write the attractive force. The attractive force which holds together the constituent particles in a chemical species. Is called chemical bond. Is called chemical bond. So basically speaking, if you have a chemical species such as molecule or something, molecule or compound, then it will obviously a molecule or a compound, it is made up of different atoms. Now, what is the force of attraction? What is the force of attraction that is keeping or that is holding the constituent particles together? That is the definition of bond. That is a bond. So what is keeping them together? Chemical bond is holding them together. Right. Next, there is a question: why do atoms combine? Why do atoms combine to make molecules? Okay, so why do atoms combine? So basically, here we have a old answer and a modern concept. Both we have to study. Please write: a chemical bond is formed. A chemical bond is formed. A chemical bond is formed between two atoms. Between two atoms to gain stability. By achieving noble gas configuration. This is the old concept that was given by Lewis, and this is also known as the octet rule. Okay, but although the modern concept says that, please write, according to modern concept, chemical bond is formed to gain stability by losing, or rather I should by releasing energy. By releasing energy. Okay. Now,
This old concept, it was given by Lewis, and he gave a rule that is known as octet rule. So please write this octet rule. What does octet rule says? Please write. The principle of attaining maximum of 8 electron in the valence shell of an atom is called octet rule. This was proposed by Lewis. ठीक है, ये तो हो गए definitions वगैरह सबकी बात हो गई, ठीक है ना? We are just talking about definitions right now. We have not understood a single word till here. Now you don't need to even dwell so much inside whatever we have discussed till now. There are few things that we will come to know and come to understand as we move on. As जैसे chemical bonding, तो पूरा chapter है, right? Chemical bonding is a complete chapter, but we have defined it earlier in the first line that we have written is the definition of chemical bond. So क्या chemical bond खत्म हो गया? No, chemical bond start हो रहा है. So obviously you are going to understand the definition as we move along the chapter. Okay. Now we'll start with the types of chemical bond that you must know. At least you must know there are two types of chemical bond from the class 10 carbon and its compound. Chemical bond. So chemical bond is of three types. You must have seen this: ionic bond, we have ionic bond, and then we have covalent bond, and then we have coordinate bond. Three types of chemical bond: ionic, covalent, and coordinate. First of all, we'll write ionic bond. Or electrovalent bond. Okay. So what is ionic bond or electrovalent bond? Please write. See, you must remember the bond which is formed by the transfer of electron. Bond which is formed by transfer of electron between atoms. It's called ionic bond. For example, I have sodium. Sodium has an electronic configuration of 1s2 and all of those things, but I will write the shell number. So 2, 8, and 1. You must remember this. And similarly, chlorine, it has an electronic configuration of 2, 8, 7, 17, right? So what happens? Sodium here, it has 1 electron like this. Okay, so 1 electron, it gives 1 electron to chlorine. So transfer, complete donation of electron happens. And when it gives 1 electron to chlorine, it becomes sodium positive. It has 1 electron less. That is why its electronic configuration becomes 2, 8, which is equivalent to the electronic configuration of neon. As it gives 1 electron to chlorine, chlorine becomes chlorine negative. Chlorine becomes chlorine negative with electronic configuration 2, 8, 8, which is the
configuration of argon, 18 electrons. Now, as you can see, it has both sodium and chlorine, both have gained a noble now, and the noble gas which is nearest to them. That is why they have satisfied the old concept. A chemical bond is formed between two atoms to gain stability by achieving noble gas configuration, right? Noble gas configuration. Now, let us see what they have made. They have made sodium positive and chlorine negative. And when you have sodium positive and chlorine negative, then there will be force of attraction between positive and negative charge. Force of attraction between positive and negative charge, which is known as electrostatic attraction. Electrostatic attraction. So this is what this is, electrostatic attraction. Opposite charges, they like each other, right? That means they are going to attract each other. And opposite charges, they attract each other. This is electrostatic attraction. Electrostatic attraction. Okay. And they have also gained a noble gas configuration. That is why we can say that this is a stable configuration, right? This is stable configuration. So all of you understood the formation of an ionic bond? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now, please see here very nicely. Please see here. There should be, when an ionic bond is forming, what is happening? Transfer of electrons. So there should be one element which is happy to give electron. Happy to give electron. There should be one atom which is happy to take electron. Achha, I cannot say happy to give electron. Rather, I should say it shouldn't be that sad, right? It shouldn't be that sad. मतलब इसकी रूह ना निकल जाए इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ना. कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मांग लो तो बिल्कुल ऐसा मुंह बना देते हैं जैसे मतलब क्या ही मांग लिया, राइट? वैसा नहीं होना चाहिए. बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं. All of you understand this? Yes or no? Yes, sir. There should one Yes, sir. atom. Okay, there should be one atom which is not very sad to give it. ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, just take electron. So not very sad, not very sad to give electron, and it is very happy to take electron. If you are going to give something, then people are generally happy to take something, right? So it should be very happy to take the electron. Now we have learned a few properties. We have learned a few properties in the last chapter. Giving of electron is represented by, or what property gives an idea about giving of electron? Which property gives an idea about giving of electron? सवाल ये तीसरे चैप्टर में यूज आ रहा है ना. टेल मी गाइस नाउ, थोड़ा दिमाग लगाएं. गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से प्रॉपर्टी में होता था? वी हैव लर्नड अ फ्यू प्रॉपर्टीज इफ यू रिमेंबर. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. Giving of electrons, losing of electron, it was discussed in which property? हाँ जी बताएं. No one answer. My voice is lagging for everyone. Is my voice lagging for everyone? No, sir. Okay. आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम? Nobody remembers this. Tell me. Losing of electron is given by which property? Abdul Hamid, Ilham, Khadija, Aqib, Khudeja, Rishita, Shaista bhi aayi. You are guys so late, huh? Na late kaise? Amna. Nobody remembers. Giving of electron, losing of electron, which property? Oh my God, देखिए रिवाइज कीजिए, रिवाइज बोलो तो जवाब. अरे मुंह तो खोलो, माइक तो ऑन करो. हाँ अब्दुल हमीद. इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. क्या एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी. पेज पलटो भाई, वो नाम भी गलत पढ़ रहे. पेज तो पलटो यार, पेज तो पलटो. I hope you guys have notes na. Flip some pages, you will get the answer. To lose electron, losing of electron is discussed in which property? Oh my God, Rishita, no idea. रिशिता. रिडक्शन तो पढ़ाया भी नहीं है यार. रिडक्शन कहाँ पढ़ाया है आपको? स्कूल में स्टार्ट किया होगा रिडॉक्स रिएक्शन. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है ऐसे भी. वो भी गलत बोल रहे. अरे नहीं यार, नहीं ये तो दिक्कत है आप लोगों की. ये तो दिक्कत है आप लोगों को. लास्ट क्लास में जो लास्ट चैप्टर था ना, अब जिन लोगों ने पूरा लास्ट चैप्टर हमारे साथ पढ़ा है, खास तौर से आई एम स्पीकिंग टू देम, दोस हु केम इन बिटवीन, can't help too much. See,
periodicity के जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, कहाँ गया प्रॉपर्टीज, कहाँ गया कॉज ऑफ periodicity, हाउ टू रिमेंबर एंड देन periodicity, तीसरे क्लास में स्टार्ट किया। हाँ देखो देखो, अरे इसमें से बताओ, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी बताती है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है आप लोग के लिए, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप यू डोंट रिमेंबर व्हाट वाज टॉट इन द लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर, Sir, is it chapter. ionization enthalpy? यस, थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच। और ये बात हमने चिल्ला चिल्ला के कहा भी था, वो नोट में अभी भी मौजूद है। यहाँ पे देखिए क्या कहा था हमने, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी are used for ionic compounds, है ना, are used for ionic compound. Ionic compounds को समझने के लिए, to understand ionic compounds we have to understand ionization enthalpy and electron gain enthalpy. Ionization enthalpy especially for metals, electron gain enthalpy especially for non metals. वही बात है यहाँ पे बिल्कुल। देखो देखिए, fear, don't write anything, please don't write anything। लिखने के लिए लिखा दिया था ना, लिखा था ना आप लोगों ने सब कुछ आया दिमाग में, सुनो ठीक है। That is why I say don't write, please leave your pen aside, listen properly. There should be an atom which is not very sad to give electron, that means its ionization enthalpy should be low. थोड़ा सा एनर्जी दे दीजिए उसको, give that atom a bit of energy, it will lose electron, happy to lose electron, happy to lose electron. Then we have an atom which is happy to take electron, that means its electron gain enthalpy should be high, electron gain enthalpy should be high. अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब्दुल हमीद, आकिब, इल्हाम, खदीजा, रिशिता, Yes, sir. दिमाग ऑन रखे, दिमाग, ठीक है। बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की। अब देखिए यही चीज, सिंपल सी चीज है, ये सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल कम इन योर एग्जाम। राइट द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, प्लीज राइट द टॉपिक, कंडीशंस for the formation of ionic bond. Number one atom should have low ionization enthalpy, IE or delta H I, ठीक है। वन एटम शुड हैव एक, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, सोचने वाली बात है, इसमें लिखाने चाहिए, सोचने वाली। आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा खुशी खुशी दे दे, एनर्जी एंथैल्पी लो। सेकंड, वन एटम should have high electron gain enthalpy, or what do we write it, delta H G. Have high value of electron gain enthalpy, electron gain enthalpy बहुत खुश, oh my god इलेक्ट्रॉन मिल गया मुझको, ठीक है। तीसरी चीज सुनिए, दिस इज न्यू, ये याद बच्चे क्या, conditions for the formation of ionic bond, one atom should have low ionization enthalpy, one atom should have high electron gain enthalpy, one atom should have low ionization, फिर दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, IE कम वर्ड तो लो, कम वर्ड तो लो, EGE ज्यादा वर्ड तो हाई, ऐसे करते हैं ना आप लोग, अरे ऐसे करते हैं ना आप लोग, याद करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए करते हैं। हाँ जी बताएं, अब्दुल हमीद, आकिब, इल्हाम, हाँ है ना, ये करना है, ये नहीं करना। कंसेप्ट क्या है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बाबू, अरे समझाओ अपने आप को। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, बगल में मान लीजिए कोई है जो होना चाहिए, जिसको मानना चाहते हैं आप, साथ में हो कोई है ऐसा, वो देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होगा, जब कोई खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन के निकालने में लगी कम एनर्जी, जब कम एनर्जी लगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दिए कम, और दूसरा जो एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो खुशी खुशी ले ले, ऐसा नहीं कि मुंह चला के हाँ दे दो, ऐसे नहीं। ओ माय गॉड इलेक्ट्रॉन, कभी आप किसी स्टूडेंट के सामने, अपने दोस्त के सामने, कोई होते हैं, हाँ या ना बताइएगा, ठीक है ना, हाँ या ना, आपने अपना टिफिन खोला, उनकी आंखों में चमक दिख जाती है, हाँ या ना, ये सब हैपेंस, नहीं दिखती है, क्या लेके आते हैं आप अब्दुल,
जी दिखती है, कुछ लोगों के आंखों में चमक, ओ माय गॉड, हाँ है ना? दिखती है। तो वैसे ही नहीं दिखती है ना, नहीं दिखती अब्दुल्ला नहीं दिखती। तो आप लेके नहीं आते हैं ऐसा कुछ, खाली टिफिन लेके आते होंगे, तो टिफिन खोल रहे बच्चा बोल रहा है यार ये खाली टिफिन लेके आया होगा यार, ठीक है? आंखों में चमक दिखनी चाहिए। सो व्हेन यू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, सो वन एटम शुड बी वेरी हैप्पी, सो इट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तीसरी चीज मेरे लिए कम से कम यहाँ लिख लीजिए, बाद में वी आर गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन दिस, है ना? दिस इज अ न्यू टॉपिक ना, न्यू कांसेप्ट है, टॉपिक है, न्यू कांसेप्ट है आपके लिए, राइट? लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। ये क्या आ गया मास्टर? लैटिस एनर्जी शुड बी, बच्चों को हम देखते हैं ना, जब ये रटने के लिए क्या वर्ड, ये एक्सपीरियंस है ना, ऐसे याद कर रहा है बच्चा। एक लो, लो मतलब कम, कम मतलब कम वर्ड आएगा, वो मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का लो होगा या हाई होगा, तो ये याद नहीं रह रहा। तो ऐसे कर रहा है, लो, लो मतलब कम, कम मतलब कम वर्ड आई ई, हाई, हाई मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब ई जी ई, तीन वर्ड। और इसके लिए क्या करेगा भाई? लैटिस एनर्जी शुड बी हाई के लिए क्या करेगा? ठीक है, तो समझिए बातों को, समझा कीजिए, ठीक है ना? ऐसे रटने की जरूरत नहीं है हर जगह, रटने की जरूरत हर जगह नहीं है। लैटिस एनर्जी शुड बी, लैटिस एनर्जी पढ़ाया नहीं मास्टर, पढ़ाओ मास्टर, लैटिस एनर्जी पढ़ाओ, पढ़ाओ लैटिस एनर्जी पढ़ाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लेके जाते हैं अब्दुल हमीद आप टिफिन में? सर नॉर्मली हाँ, सैंडविच। नॉर्मल सैंडविच। नॉर्मल सैंडविच मतलब वो इंडियन सैंडविच या फिर वो यूके वाला सैंडविच, मतलब ब्रेकफास्ट वाला सैंडविच होता है वो वाला, कौन सा? मोस्टली एग एग सैंडविच। ओह ठीक है, तब तो कौन ही खाएगा, आपकी भी आंख नहीं चमकती होगी उसमें तो। इंडियन सैंडविच होता है, जो इंडियन सैंडविच है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से इंडियन सैंडविच और ब्रिटिश सैंडविच, है ना? एक तो हमको समझ नहीं आता है ब्रिटिश, आप पता नहीं आपकी क्लास में मैंने बताया ये बात नहीं बताया, ये बताइए ब्रिटेन वाले लोग, ब्रिटिश जो है या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया को इन्वेट क्यों किया था, इंडिया में क्यों आए थे? resources, स्पाइसेस। हाँ, किसके culture, लिए आए थे? नहीं नहीं, कल्चर वल्चर क्या, कल्चर तो चेंज करके चले गए, पैंट शर्ट पहनाना सिखा दिया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या और सिखा दिया ना, अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ, किसी ने बीच में इल्हाम ने क्या कहा था? तो स्पाइसेस। स्पाइसेस। और सबसे कम स्पाइस रहता है अंग्रेज के खाने में, कुछ रहता है उसमें, नहीं। पता नहीं नो क्यों सर। ही लेके, है ना, पता नहीं क्या ही करने आए थे तो। चलिए, आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लोगों ने बोला देखो, एक तो तरीका है आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई, ये कर लेते हैं। एक और चीज है लैटिस एनर्जी, दैट मींस व्हेन द टू एटम्स, व्हेन यू रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन एक से, अदर एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन, दे गेन्ड द चार्जेस, दे गेन्ड द चार्जेस। अब देखते हैं दोनों में अट्रैक्शन है कितना, हाउ अट्रैक्टेड आर बोथ ऑफ दीस थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें, देखिए, if I am going to talk, then if both are having positive and negative charges, तो क्या दोनों के बीच में attraction same या same नहीं है? Okay, so in that case they said that let us do something, NaCl मान लीजिए, NaCl क्या है आपके पास? NaCl, सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव, positive and negative, okay, there will be some attraction here, ठीक है, there will be some attraction. Now before there was no attraction, after there was, I mean before, that means when it was sodium and chlorine, sodium positive, chlorine negative, sodium chlorine, then neutral, there was no attraction. As soon as attraction happened, stability was gained, because attraction happened, attraction हुआ तो stability मिली, attraction हुआ तो stability मिली। Now if you remember something that I have taught, if stability increases, energy is released, release of energy happens, release of energy। जब भी stability आएगी, there will be release of energy, so very high, if the stability is very high amount of energy will be released, ज्यादा energy release होगी। You have seen this concept in the electron gain enthalpy also, if you can remember। हाँ guys बताएं, अगर stability ज्यादा होती है, attraction ज्यादा, stability ज्यादा, तो release of energy ज्यादा, electron gain enthalpy नेगेटिव होता है। अरे याद आ रहा नहीं याद आ रहा, बताइए। attraction 11 attraction 12 attraction, कुछ याद आ रहा है?
चलिए भूल जाइए। अभी याद कर लीजिए इतना, if the stability is high, energy release is also high. If the stability is high, energy release is also high. Release of energy is high when the stability is high. तो बोला हमने, इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ। When a cation and an ion they come into contact, जब दोनों आसपास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। With attraction there is stability. With stability there is release of energy. And what is the amount of the release in energy? That is the lattice energy. उसी को क्या बोलते हैं? Lattice energy. Please write with me. Please write with me. The amount of energy. The amount of energy released. Amount of energy released when 1 mole of ionic solid is formed from gaseous ion. Gaseous atoms from gaseous atoms is called lattice energy. मास्टर गैस कहां से आ गया मास्टर? बताओ, बच्चों को बताओ। हाँ सुन, तो गैस यहां से आया। गैस जनरली whenever we take gas as in any definition, if I am taking gas, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए है ना, इट इज फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। गैस में क्या होता है ना, वन एटम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर एटम, ठीक है। सो व्हाटएवर मेजरमेंट यू डू इन गैस स्टेट, दैट इज प्योर मेजरमेंट्स, है ना, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग एल्स, दैट इज व्हाई वी टेक गैसियस एटम्स। तो गैसियस एटम का कांसेप्ट यहां से, we will take gaseous atoms, and from gaseous atoms we will remove electron, the other will take electron, they will form ionic solid, and whatever energy is released, that is called as lattice energy. That is called as lattice energy. चलिए, बट दिक्कत ये है भाई, एनर्जी का रिलीज मेजर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम समझ लीजिएगा जरा बात को। आपने खाना वाना खाया, है ना, आपने खाना वाना खाया, तो आपके अंदर एनर्जी आ गई, खाने ने एनर्जी रिलीज की, कितना क्या आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आप थकोगे नहीं। एक दिन आप कर रहे एक्सपेरिमेंट अपने साथ, कॉफी पी के ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सही रहता है, या फिर चाय पी के, तो सुबह उठे कॉफी पी, उस क्षण थोड़ा पता चलेगा। अरे दिन गुजारो, आप एनर्जी खत्म करो अपना, तब जाके समझ में आएगा कौन ज्यादा अच्छा। उसी तरह से यहाँ पे भी जब एनर्जी मिलती है ना, तब नहीं समझ में आता है, एनर्जी देने पे, यानी कि चीजों को तोड़ने पे समझ में आती है। इसी वजह से और लिखिए, for the measurement of this lattice energy, how do we define it? Please write the amount of energy required to break 1 mole of ionic solid in its and to its constituent gaseous atoms is called lattice energy. It's called lattice energy. All of you understood both the definitions? Yes or no? Please tell me. थोड़ा सा बता दीजिए, है ना, आप लोग तो ऐसे चुप रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। आप अगर डाउट किसी को तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा। इल्हाम, खदीजा, दिशिता, शाइस्ता, खुदीजा, आमना, बाकी लोग बताएं। All of you understood both the definition and the requirement कि दोनों definition क्यों है? एक्चुअली Yes, मेजर sir. करना था कि स्टेबल कितना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेबल के हमने डेफिनेशन दे दिया, फिर देखा प्रॉब्लम आ रही है मेजर करने में। तो फॉर मेजरमेंट व्हाट डू वी डू? वी, अब जितनी एनर्जी लग रही है किसी चीज को तोड़ने में, सोचिए दो दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, जितना एनर्जी लग रहा है आपको उस दोस्ती को तोड़ने में, बहुत गुना मिलेगा, लेकिन वैसे बता दे रहे हैं, तोड़िएगा मत, इस तरह की काम मत कीजिए। जितना आपको एनर्जी लग रहा है उस दोस्ती को तोड़ने में, उतनी ज्यादा अच्छी उनकी दोस्ती है। अरे एक बार आपने साइड में ले जाके उनको चाउमीन खिला दिया और दोस्ती टूट गई किसी दोस्ती, तो क्या ही दोस्ती थी, है ना। लेकिन भाई अब बिरयानी पे बिरयानी खिलाए जा रहे हैं, दोस्ती कुछ नहीं।
बिरयानी मतलब समझ रहे हैं ना, उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रहे हैं, फिर भी दोस्ती टूट नहीं रही, यानी दोस्ती है मजबूत। वो दोनों अलग मजे ले रहे हैं। तेरे साथ क्या बोला उसने? अच्छा, ये बुराई कर रहा था मेरी। अच्छा, अब भाई तू बता। अरे तेरे बारे में तो ये बता रहा था वो, तू ऐसे बोलता है मेरे को, तू ऐसे बोलता है। अच्छा, ये बोल रहा था, ठीक। वो दोनों मतलब उनकी दोस्ती इतनी अच्छी टूटी नहीं रही। तो टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो आप क्या करिए, जो बनी हुई चीज है ना उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। इफ इट इज रिक्वायरिंग हाई एनर्जी, दैट मींस you have a lot of stability there. Its lattice energy is very high. Its lattice energy is very high. अब नोट लिखिएगा जरा। I hope you have written these 2 points. Then write a note समझने के लिए। ये तो डेफिनेशन है, आपका मास्टर पूछेगा ना जब स्कूल में, when you will be asked, तो उसमें लिखिएगा। अब अपने समझने के लिए कुछ तो लिख लें। क्या बोलना चाहता है लैटिस एनर्जी? प्लीज राइट, लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट्स, लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट्स, lattice energy represents the attractive force between the two oppositely charged ions, between the two oppositely charged ions, Next point, higher the value of lattice energy will be ionic bond, ठीक है। चलिए, तो ऋषिता क्या बताता है लैटिस एनर्जी? बताएं ऋषिता, लैटिस एनर्जी क्या बताता है? कहना क्या चाहता संदेश? बताइए। So it represents the attraction between the two oppositely charged ions. ठीक है, मतलब A positively an attraction between a positively charged ion and a negatively charged ion. क्या मतलब? ये तो अपोजिट का आपने संधि विच्छेद, अपोजिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, तो आप मतलब दोस्ती अच्छी है या नहीं है, यही बताता है ना? क्या बताता है? Yeah, strong. है ना, लैटिस स्ट्रॉन्ग, लैटिस एनर्जी अच्छी तो बॉन्ड अच्छा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड बढ़िया, बॉन्ड बढ़िया, है ना, बॉन्ड बढ़िया। चलिए देखिए, सुनिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, लिखना कुछ नहीं है अभी, लीव योर पेन साइड, है ना, बिल्कुल ऐसे सर पे हाथ रख के बिल्कुल आराम से चेयर में ऐसे रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। सुनिए, हाँ जी, देखिए जरा 2 केसेस देंगे आपको, ध्यान से समझिएगा, आसान सी बात है। एक आपके पास है +1 चार्ज, कितना +1 और -1, 1 1। दूसरा केस है आपके पास 2+ चार्ज है और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, +2 और -2। थोड़ा अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा ध्यान से बताइएगा जवाब जरा, है ना, थोड़ा ध्यान से बताइएगा जवाब। एंड चार्जेस के बारे में अगर आपको आइडिया उतना नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा कि सर मतलब अगर आपको सवाल समझ में आ गया क्या पूछने वाले, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो जरा इन चार्जेस को मास लेके ना ग्रेविटेशन तक ले जाइए, थोड़ा ग्रेविटेशन कहाँ ज्यादा होगा ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। आई होप यू गाइस रिमेंबर 9th क्लास का पार्ट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ होगा। बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, G F = G m1m2/r², है ना। तो वही उसी तरह का फॉर्मूला होता है। those who have done atomic structure with me, they know Coulomb's law में एक चीज होती है जो चार्जेस के बारे में होती है ना, इनको आप ना मास मान लीजिए, जिनको चार्जेस के बारे में नहीं पता है मास मान लीजिए, और बताइए कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, केस ए या केस बी, कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा? दोनों में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों में ही सेम है, बताइए ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, ए में या बी में? आराम से बताइए जवाब, बिल्कुल ऐसे 10वीं क्लास से सोचिएगा, 9वीं क्लास से सोचिएगा, 11वीं क्लास का दिमाग मत लगाइए, 11वीं क्लास में आ जाते हैं बच्चे करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 11वीं क्लास के हमको दिमाग नहीं चाहिए करप्ट वाला, ठीक है, हमको चाहिए बिल्कुल ऐसा प्योर बच्चों वाला दिमाग। बताएं कहाँ ज्यादा होगा अट्रैक्शन, बोलो भाई, ए या बी? बी। बी, है ना, वेरी गुड, सही जवाब बी, है ना। आधे 11th का दिमाग लगाते तो आधे बच्चे ए बोल देते, है ना, हाँ या ना बताएं, उल्टा Yes. हाँ।
है ना, उल्टा नहीं, 11th वाला दिमाग नहीं लगा, 11th वाला तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, 11th वाला दिमाग नहीं लगा, बच्चों वाला दिमाग, ठीक है, बच्चों वाला दिमाग, मेरे क्लास में खास तौर से। इंशाल्लाह कभी दिक्कत नहीं होगी, बच्चों वाला दिमाग लगाइए, कभी दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर ज्यादा है, तो अगर आपके पास आयन हो जिसमें +2 और -2 चार्जेस है ना, व्हेन द चार्जेस इज +2 and -2, then I can say that force of attraction is directly proportional to magnitude of charge. अरे बोल सकते हैं हम कि नहीं बोल सकते, बताइए। हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। अभी टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहे, सुनिए सिर्फ आराम से, ठीक है ना। लग रहा है क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? नहीं लग रहा ना, आराम से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देख लीजिए, अब आते हैं एटम को लेके, इसको लेके आते हैं एटम। अच्छा भाई एटम, फिर से दो केस। ऑल केमिस्ट्री इज रिलेटिव। इन केमिस्ट्री यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स रिलेटिव टू ईच अदर। इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा, इसमें कम या इसमें कम, ऐसे, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए जरा। अच्छा, थोड़ा अगर किसी को याद हो ये बताइए, कटायन बड़ा होता है एनायन बड़ा होता है? Which is larger in size, cation or anion? हाँ किप, anion. हाँ वेरी गुड शाइस्ता, anion is larger in size. तो ये आपका anion है, this is your anion, this is your cation. अब बोलेगा सर मास्टर चार्ज दे दो यार, हम लोग देखिए चार्ज तो हम दे दें, बट जनरली आपको चार्ज ऐसे प्लस लिखने को मन करेगा और यहाँ पे माइनस लिखने को मन करेगा, ठीक है ना। बट सी द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्लस और माइनस में, देख लीजिए जरा। प्लस में तो प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में प्रॉब्लम है। I have written minus in the center. Minus in the center. Center में we have nucleus and nucleus is positively charged. माइनस कहाँ से आ गया भाई? तो माइनस यहाँ पे नहीं होता है। Whatever negative charge you are having on an anion, it is not inside the nucleus. Rather, it is in the valence shell. It is in the valence shell. अब सुनिए जरा। प्रोटॉन को हमने यहाँ रेड से डिनोट कर दिया। ये प्रोटॉन कटायन छोटा वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन इतनी दूर, उसका इलेक्ट्रॉन इतनी दूर, ठीक है। ये केस है आपके पास। अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा अलग केस है। Now in the B case में देखिए जरा क्या हो रहा है। न्यूक्लियस here and the outermost electron of the other atom, anion का यहाँ, this is cation, this is anion. Now where will be the force of attraction greater, A और B? Where will be the force of attraction? हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा और हम आसान कर देते हैं। A और B बताएं जरा, हमारे लिए तो बस यही है ना, हमारी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बताइए कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा? A में. A. दिख रहा है सबको, हाँ या ना? पता है सबको दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. I hope you can also say that because distance is less in A case. बस यही खत्म। Yes. फैक्टर्स अफेक्टिंग, टॉपिक डालिए, समझ में आ गया? अब टॉपिक डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर 1 इज राइट, lattice energy is directly proportional to magnitude of charge. Magnitude of charge meaning lattice energy is directly proportional to Q1 into Q2. Okay, so I'm just telling you guys, see, as we have the gravitational force now, we similarly gravitational force is between two masses, between two charges we have coulombic force, and that force is given by F is equal to K Q1 Q2 upon R square. This is something that you are going to learn in the 12th standard in physics. Right now you are studying in physics, you are studying about point mass, है ना?
पॉइंट मास ही तो पढ़ रहे हैं आप लोग। रोटेशन स्टार्ट हुआ क्या किसी का? रोटेशनल मोशन, हैव यू स्टार्टेड रोटेशनल मोशन? No, sir. नो, ओके फाइन। रोटेशनल मोशन में आप लोगों को मतलब जबरदस्ती पॉइंट मास करना पड़ता है, इस वजह से हम पूछ रहे थे, अदरवाइज आपको पता नहीं है अभी, बट यू आर स्टडिंग अबाउट पॉइंट मास राइट। द नेक्स्ट क्लास यू विल बी स्टडिंग अबाउट पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज, whatever force of attraction is between those point charges is because of this. This is the equation. So Q1 into Q2. So here in ionic solids we have what? Cation and anion. These are charges. So it depends on the magnitude of charge and attraction. Force of attraction, it depends on Q1 into Q. Another thing is R square, that is the distance. Please write next. Lattice energy. It is inversely proportional to distance के लिए in chemistry what we have size of ions, right? So lattice energy is inversely proportional to size of ions. Size of ions, okay. Now please see, first of all we will check. If I get the answer by magnitude of charge, I will not see size of ion. If the magnitude of charge is same in two cases, then only we are going to look at the size of ions, okay. So please write this down, let me know once you are. अब देखिए size of ions जैसे ही बोला हमने, आपको दिमाग में चमकना चाहिए कि पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, in last chapter we had a topic ionic size, atomic size, left to right in a period, top to bottom in a group, क्या होता है ना? So all of these things are required in this chapter, at least in this topic. All of you done? Yes or no? Please tell me. All of you done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सवाल करते हैं, सवाल क्या करते हैं? सवाल, पहला ही सवाल लिख लीजिए पहले। क्या लिखिएगा? compare the lattice energy between lattice energy of the following pairs, of the following pairs. Number one, magnesium oxide versus lithium chloride. Magnesium oxide versus lithium chloride. So what are the ions here? MgO में क्या क्या ions है बताएं जरा? Tell me guys. What are the ions on MgO? Magnesium में क्या charge होगा बताएं? Oh my god. How much positive? Rishita? Yeah, Mg 2 positive. Rishita, आप mic ठीक से on किया करें, space bar मत दबाया कीजिए. And what is the charge on oxygen? Oxygen Minus. charge minus. देखिए आपको बोल रहे हैं हम, स्पेस बार मत दबाओ, आप माइक ऑन करके रखिए, आराम से जवाब दीजिए, फिर बंद कीजिए। हाँ -2. हाँ इस तरह से, ठीक है, -2. नाउ Li में व्हाट इज द चार्ज ऑन Ni गाइस? एक सेकंड, रिश्ता नहीं, रिश्ता बाकी लोग बताएं। इल्हाम, शाइस्ता, आमना, खदीजा, आप लोग बताएं। अब्दुल हमीद, आकिब। +3. +3 कैसे? हाउ +3? क्या आ रहा है यहाँ पे? सी। देखिए छोटी छोटी चीजें जो आप लोग मतलब हर चैप्टर में, केमिस्ट्री में यही दिक्कत हो जाएगी, चैप्टर में पुरानी चीजें इस्तेमाल होती हैं। लिथियम इज इन विच ग्रुप? लिथियम इज रिएक्टिव, है ना? लिथियम इज रिएक्टिव। लिथियम इज यूज्ड फॉर बैटरी। हाँ बताइए। +2 का है? +2 वाई बबुआ, वाई? लिथियम इज इन विच ग्रुप गाइस? लिथियम कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप। तो व्हाट विल बी द वैलेंसी? वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो लूज कर सकता है। सोडियम के ऊपर आता है। लीनक रबकस पर, लीना मांगे, लीनक रबकस पर तो होता है, उसमें क्या होता है? लीना की रब से फरियाद अगर याद हो, बट आई यूज लीनक रबकस पर। So lithium will be positive. Chlorine, what is the valency of chlorine? Cl क्या होगा? हाँ, Cl minus, Cl negative. बताइए Q1 into Q2. MgO के लिए क्या हो जाएगा? 2 into 2 is equal to 4. Here we will have 1 into 1 is equal to 1. Which is greater? Whose magnitude of charge is greater? MgO. So MgO will have higher lattice enthalpy. Do I need to see the size? Size देखें क्या? बताइए. Should I see the size? Should I compare the sizes? अरे बोलो भाई, थका दिया भाई तुम लोगों ने हमको। No, sir. No, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगला सवाल देखिए, ध्यान सुनिए जरा, ध्यान
MgCl2 versus MgCl2 versus, let us suppose we have again NaCl, ले लीजिए आप NaCl, MgCl2 versus NaCl. Mg पे you have +2 charge, correct है guys? Yes or no, please tell me. Mg is +2 Yes, charge sir. here also, na? Yes. Now please understand, when we write Cl2, ध्यान से देखिए, लिखे मत कुछ भी, keep your pen aside, relax and watch. If I have Cl2, then I have 2 chlorine. What is the charge on each chlorine? -1. बात समझ में आई कि नहीं आई? Na is positive, chlorine is -1, +1 -1. So 1 into 1 is equal to 1. If you remember, sir, ये मास्टर पॉजिटिव नेगेटिव का ले रहा है, तो मास्टर पॉजिटिव नेगेटिव इस वजह से नहीं ले रहा है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, नॉट द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में क्या आता है? सिर्फ वैल्यू. मैग्नीट्यूड मींस ओनली वैल्यू. करेक्ट गाइस? यस नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है? That is why I am Yes, sir. only taking the values, not the signs. So here also tell me which is going to have higher lattice enthalpy. Whose lattice enthalpy will be higher? MgCl2. Thank you very much. अगला सवाल. ठीक है. कैल्शियम फ्लोराइड वर्सेस कैल्शियम क्लोराइड. शुरू हो जाइए. कैल्शियम चार्ज, कैल्शियम पे चार्ज, कैल्शियम पे 2 चार्ज. plus. हाँ, 2+. Fluorine, how many? 2 fluorine. Each charge on each fluorine. Charge on each fluorine. -1. -1. इधर बताइए बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे. बताओ. अरे बाकी लोग बताओ यार. इल्हाम, खदीजा बोलते तो हो आप लोग, माइक ऑन करके बताओ यार. कैल्शियम, अभी देखो कैल्शियम पे क्या चार्ज, बोलो. टेल मी गाइस. +2. +2. +2. In chlorine, -1. how many? Chlorine -1. -1, but 2 into 2 -1. into सही है? -1. सही है? Yes, sir. So magnitude of charge Q1 Q2 कितना हो जाएगा? Q1 Q2 4 टाई. सुपर ओवर. टाई आ गया. टाई है ना? मैच में टाई. सुपर ओवर में क्या होना आएगा बताइए? कौन आएगा सुपर ओवर में? सुपर ओवर में कौन आएगा? So size of ion. साइज ऑफ आयंस. वेरी गुड. साइज ऑफ आयंस. आप देखिए, सुनिए, क्या कैल्शियम और कैल्शियम के साइज में कोई फर्क होगा? नहीं बोलो. sir. तो कैल्शियम और कैल्शियम के साइज को कंपेयर करने से कोई फायदा है? No. नो. राइट. सो व्हाट वी विल कंपेयर? क्लोरीन एंड Chlorine and chlorine. अब बताइए, साइज की बात आ रही है. साइज फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन बड़ा? भूल गए सारे. ओ माय गॉड, ये हंसी मेरी गुस्से वाली हंसी है. कौन बड़ा फ्लोरीन और क्लोरीन में? ओ माय गॉड, Chlorine. क्लोरीन बड़ा भाई. Those who have not done periodic properties अच्छे से कर लीजिए प्लीज. डाउन द ग्रुप. फिर कल बाहर आई आंटी. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. फिर कल मतलब क्लोरीन. फिर मतलब फ्लोरीन. Down the group the size increases. So size will increase. So chlorine will have greater size. अब बात आएगी किसकी? लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी यहाँ पे लिख देंगे CaF2. F की जगह क्या लिखेंगे? CaF2. CaCl2 की जगह लिखेंगे CaCl2. अब बताइए, लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली? हाँ बोलिए. Directly. डायरेक्टली मार दीजिए हमको आप, है ना? मार दीजिए. Inversely. मार दीजिए. Inversely. कत्ल कर दीजिए हमारा. इनवर्सली लिखा हुआ है, डायरेक्टली बोलते हैं. सुनिए, इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से. पेन छोड़िए. ठीक है. साइज में ये साइन है, बट साइज एंड लैटिस एंथैल्पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो फ्लोरीन का CaF2, क्लोरीन का CaCl2 लिख दिया. साइन को उल्टा कर देना क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बात समझ में आई सबको? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो? साइन उल्टा क्यों हुआ? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. चलिए, आगे लिखते हैं और एक एग्जाम्पल, फिर करते हैं क्लास को खत्म. नहीं, क्लास नहीं खत्म होगी अभी, टॉपिक खत्म होगा अभी, क्लास को खत्म. चलिए यहाँ पे ध्यान से लिखिए.
वर्सेस NaCl? इसका जवाब चाहिए हमको चैट में। कितना टाइम चाहिए आप लोगों को? 3 मिनट would be enough, I think 3 minutes would be enough. 3 minutes would be enough. चलो भाई 3 मिनट का टाइमर लगा दिया हमने। अरे आप लोग को हम एक मस्त चीज दिखाते हैं। ये कहाँ गया यार? एक हाँ कहाँ गया? There was a very nice thing here. पता नहीं कहाँ चला गया। I mean in OneNote only there was very nice thing. पता नहीं कहाँ चला गया। अरे हाँ ठीक है, आंसर तो देख लिया जाएगा बाद में, आंसर तो हो जाएगा। यहाँ ना कहीं पे मैथ्स का एक ऑप्शन था। ड्रॉ चला गया। ओ में था इंसर्ट सिंपल इक्वेशन। ओके रिश्ता है ना आपकी, देखते हैं हम लोग, देखते हैं ना। ठीक है, अब जो लोग को बैलेंस नहीं पता वो लोग तो बिल्कुल भाग जाएंगे। देखिए शाइस्ता, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर? शाइस्ता, शाइस्ता थोड़ा एक्सप्लेन करिए आंसर को। Yes, sir. व्हाट इज द चार्ज ऑन लिथियम? 1 plus 1 +1, ओके। क्लोरीन, -1 सोडियम +1 एंड क्लोरीन। -1. When we multiply them, we get the same answer -1. सो -1 नहीं 1 आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है चलिए, ठीक है, सेम आंसर। सो आफ्टर दैट We have to check the size. साइज, किसका साइज चेक करेंगे? क्लोरीन और क्लोरीन है ना? No, sir. Lithium and sodium. लिथियम एंड सोडियम, कौन बड़ा? Sodium is Sodium is bigger in size. So lattice energy, इसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी? NaCl. अरे भाई मेरे, इतना तो समझाया यार कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज को उल्टा कर देगा साइन को। Sorry. Let's. और दूसरा आपने लिखा क्या, हम तो उसी पे थोड़ा सा घबरा गए। आपने लिखा क्या थोड़ा पढ़िएगा, व्हाट यू हैव रिटन। हाँ शाइस्ता, Yes, sir. है ना? तो उसमें तो आप बताइए, हम घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? Yes, sir. ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी अगर आप हम देखें, NaCl हैज मोर चार्ज लिख दिया आपने ना, तो हम घबरा गए। NaCl की चार्ज क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा कैसे ज्यादा? ठीक है चलिए, तो अंडरस्टूड इट करेक्टली। थोड़ा सा लिखने में आपने थोड़ा सा ऊंच नीच कर दिया, कोई बात होता है। ठीक है, हो सकता है। ऑल ऑफ यू गॉट LiCl इज ग्रेटर, है ना? जिन लोगों का नहीं लिखा छापे अभी, जिन लोगों को ये नहीं पता ना +1 -1, उनके साथ दिक्कतें होने वाली इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सुनिए सवाल लिखिए। अच्छा एक चीज, एक पॉइंट लिख देना, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबल ज्यादा होगा, ज्यादा इफ दी, ऐसा तो वर्ड मतलब इसे लिखाना पड़ता है आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान देखिए। Higher the value of lattice enthalpy, stronger will be the ionic bond. If the ionic bond is strong, that means the molecule is stable. So what I can write, stability of ionic molecule is directly proportional to lattice energy. चलिए अब सवाल लिखिए। Which of the following pairs, which of the following pairs will form
most stable ionic compound? Option A. Option A, sodium positive. Sign positive positive सब कुछ दे दिया. Sodium Cl negative. Sodium positive and Cl negative. B, Mg2 positive and F negative. Option C, lithium positive and fluorine negative. Option D, sodium positive and F negative. आंसर बताएं फटाफट. फटाफट आंसर बताएं. फटाफट फटाफट. टाइम दे देंगे आप लोग को 2 मिनट. 2 मिनट. ऑप्शन सारे हैं. 2 मिनट आराम से. बहुत आसान सवाल. लोड नहीं लेना आप लोग को. आराम से जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं वैसे कीजिए. वन आंसर. अच्छा. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? क्या कर रहे हो यार आप लोग? कैसे कर रहे हो भाई? थोड़ा इस तरह से तो आंसर नहीं आएगा. बाकी लोग बताएं कैसे कर रहे हैं जरा. Q1 Q2 बता दो ना यहाँ पे. Q1 Q2. ओके. आके Q1 Q2 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 1. Q1 Sir, Q2 1. Q1 Q2 1 and Q1 Q2 here 2 into. two. अब यही ध्यान रखना 1 नहीं होगा. 2 into 2 हो जाएगा. Why? Because when we will make MgF2 बनेगा. अगर आपको याद हो 9th क्लास का सवाल हो जाएगा ये. NF नेगेटिव भी नहीं होगा ऋषिता. ऑप्शन बी होगा. Mg और F नेगेटिव. राइट. Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वैलेंसी इसकी 2. F पे वैलेंसी 1. कंपाउंड क्या बनेगा? MgF2. ठीक है. 2 into 2 4 हो जाएगा. ऑप्शन बी. सिंपल सवाल था बिल्कुल. पता नहीं आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं. कांट अंडरस्टैंड. जो लोगों ने आंसर नहीं दिया. ऋषिता आई डोंट नो कैसे कहा आपने. क्या इसको नहीं देखा था आपने? Mg2 प्लस है. ऋषिता आके वेरी गुड. योर आंसर इज करेक्ट. हाँ ऋषिता बताइए. Mg2 प्लस नहीं देखा था आपने? I missed it, sir. मिस्ड इट. वाह. 4 ऑप्शन आप मिस कर. ठीक है. बताइए सवाल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? बाकी लोग बताइए. इल्हाम, खदीजा, रिशिता, शाइस्ता, आमना, आकिब एंड अब्दुल हमीद. सवाल होना चाहिए था. सही आंसर आना चाहिए था आप लोग का. हाँ या ना? अरे बोलो भाई. नहीं आना चाहिए था? Yes, sir. आठ है क्या बहुत? ठीक है. आराम से आ सकता था जवाब. चलिए मूविंग ऑन. ये बातें आपकी खत्म हो गई. किसकी? आयनिक बॉन्ड की बातें खत्म. अब हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड. Most of you must have already learned about covalent bond. Please write the topic covalent bond. One second.
Covalent bond. Please write the bond which is formed by equal sharing of electron between two atoms is called covalent bond. It's called covalent bond. Now, there are a few conditions for covalent bond. Both atoms should be predominantly non-metal. First. Second, electronegativity difference should not be large. Should not be large. Okay, so whenever two atoms are going to combine, whenever they are going to share, they are going to share the electrons, this particular accident, ये हादसा दो तरीकों से हो सकता है. Two different ways. What are the two different ways? Please write. Types of covalent bond. Whenever two atoms are combining by sharing of electron, also please see here, both atoms should be predominantly non-metal. So you take one non-metal, na? Kuch bhi non-metal. Next point, electronegativity difference should not be large. आपने लिया एटम ए और बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना, दूसरा भी एटम ले लिया, ए ले लिया आपने. Electronegativity difference, whatever the electronegativity of A is, same is the electronegativity of and this A also. That is why the difference is 0. बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ना कि अगर आप क्या कर लें, you take both the atoms are same. पहला केस क्या बनेगा? Both the atoms are same. Both atoms are same. For example, hydrogen bonded to hydrogen, chlorine bonded to chlorine, fluorine bonded to fluorine, oxygen bonded to oxygen. Now, I'm writing. Dil pe mat lijiye. Carbon doubly bonded to carbon, carbon singly bonded to carbon, carbon triply bonded to carbon. There will be another atoms which are bonded to each carbon atom that we have shown here, but we are not caring about those. We are just caring about the bond between this and this carbon, whatever I have written. There will be other bonds also, but I'm not worrying about those atoms. I'm worrying about only these carbon, carbon. Nitrogen triply bonded with nitrogen. So all of these are examples of what in some में देखिएगा. Please understand this. ध्यान देने वाला बात आ गई. ध्यान देने वाला बात ये है कि the electronegativity difference between H and H, meaning if I take an atom A bonded with another atom A, then there is no electronegativity difference. That means neither A is trying to pull the electron nor the other A is trying to pull the electron. That is why the electrons are equally symmetrically distributed. Okay, equally and symmetrically distributed. Now please see, both atoms are different. Here atoms are same, here atoms are
different. Which atoms? The atoms which are making covalent bond. ये मत भूलिएगा. For example, H bonded to Cl. Another example would be, for example, please write H bonded to oxygen. Now, after oxygen, there will be some other bond also. H bonded to oxygen. Another example would be what we can take. For example, carbon doubly bonded with oxygen. Carbon singly bonded with oxygen. What else we can take? What are examples हो सकते हैं ना? You can have nitrogen bonded to hydrogen. Okay. Now, in all of these cases, one of the atom will be more electronegative than other. Let us suppose I have A bonded to B. Simple. A bonded to B, and the electronegativity which is shown by chi of A is greater than the chi of B. What is the meaning of this? The meaning of this is A has tendency to pull electron greater than that of B. The tendency to pull electron is greater in B. That is why A will be pulling electrons. ध्यान से दीजिए, बहुत important concept है ये. Very important. A is pulling the electrons. A is pulling the electrons. If A is pulling the electrons, A will get delta negative charge. B will get a delta positive charge because उससे electron खींच लिया. Absence of electron which is negatively charged. Absence of negative charge is positive charge. Delta positive. So it will get partial. All of you have seen delta in what? All of you have seen this. ये देखा ना dx. dx देखा ना physics में सबने? अरे देखा नहीं है? dx by dt क्या बोलता है? dx by dt क्या बताता है बताइए? क्या? x पोजीशन होता है ना बस. नहीं, x पोजीशन मान लीजिए. dx by dt क्या बताएगा? हाँ, भूल गए. Position related time. फिर से आपके once again. x is position. x क्या पोजीशन? बताओ, कौन बताएगा? फिजिक्स बताइए. शाइस्ता, खदीजा, इल्हाम, आकिब. What is dx telling? Oh my god. x क्या हो रहा है बताइए? x is position. x is what? Tell me guys. x क्या है? x क्या है? Position. और d क्या है? Change. d क्या है? छोटा सा चेंज, राइट? चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी. अरे पढ़ाया तो होगा आप लोगों को. सब भूल जाओ. सब पढ़ा होगा. मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ लाइन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप बताओ. और डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ देखा आप लोगों ने? ऐसा? नहीं देखा. Yes, sir. क्या बताता है ये? डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर क्या बताता है? डबल डिफरेंशिएशन. हाँ, वेरी गुड. एक्सेलरेशन क्या बताता है? एक्सेलरेशन. फिजिक्स कीजिएगा क्या? फिजिक्स का सवाल दें? फिजिक्स का क्या सवाल? चलिए इधर आइए. अब ये देखिए, ये क्या है? डेल्टा मतलब छोटा सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. ये सारे के सारे में क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. एंड व्हेनेवर यू हैव नॉर्थ, ये दुनिया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इन दोनों को क्या बोलते हैं? नॉर्थ इसके आगे एक वर्ड लगता है, साउथ के आगे एक वर्ड लगता है. क्या बोलते हैं इनको? नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ बोलो भाई, अरे आता होगा तुम लोगों को. नॉर्थ क्या है? और नीचे अर्थ के डाउन साइड में साउथ. ओ माय गॉड, भूल गए सब. नॉर्थ. अरे आगे तो कंप्लीट कर दें प्लीज. ऋषिता, नॉर्थ एंड साउथ Yes, sir. क्या? पोल्स. थैंक यू वेरी मच. नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है ना? पोल्स क्यों? बिकॉज दे आर पोलर अपोजिट. जानते हो वो दोनों भाई बहन, वो दोनों भाई जो है ना, हाँ भाई है वो दोनों, पोलर अपोजिट है. सुना है नहीं सुना? सबने हाँ या ना बताए? अरे सुना है कि नहीं सुना है? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. पोलर अपोजिट. तो वही इसी को बोलते हैं पोलर. क्या बोलते हैं? पोलर. क्या हो गया? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. अपोजिट, पोलर अपोजिट. पोलर अपोजिट. दैट्स व्हाई दीस बॉन्ड्स आर नोन एज पोलर बॉन्ड्स. तो क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड है ना? कैसा बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पूरा लिख लीजिए. बाद में बोलेगा मास्टर लिखाया नहीं, आधा लिखा था. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये बता दे भाई क्या हो जाएगा? थोड़ा दिमाग लगा लीजिए. What will be these type of bonds called when atoms are same? Do we have poles here? No, sir. नहीं. तो क्या हो जाएगा?
नॉन पोलर, आसान इजी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं कि नॉन पोलर। देखिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट टाइप नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड टाइप पोलर। अरे क्यों भाई, एटम्स के बनने की दो ही सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी, या तो सेम एटम जुड़ेगा या तो अलग एटम जुड़ेगा। और पॉसिबिलिटी है हाँ या ना बताएं, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? अरे बोलो भाई, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? If two things are combining, either it will be same or it will be different. अब उसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस तो ऐसे ही हुआ होगा ना, ये टॉपिक जब पैदा हुआ होगा तो ऐसे ही तो पैदा हुआ होगा कि मतलब जब जब स्टार्टिंग में ही आ गया कोवेलेंट बॉन्ड का कसम वहीं से आ गया, नहीं ना। लोगों ने देखा होगा या तो एटम सेम कंबाइन हो रहा है या तो एटम डिफरेंट कंबाइन हो रहा है। तब उसके बाद क्लासिफिकेशन आया, पहले लॉजिक आया। लॉजिक है ना ये तो। 8वीं क्लास के बच्चे को बोलो एटम सुना है? एटम, हाँ सुनिए एटम। एटम सुनिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम। बता, दो एटम जुड़ेगा तो क्या पॉसिबिलिटी? 8 क्लास का बच्चा बताएगा, या तो सेम होगा या तो अलग होगा, या तो सेम होगा या तो अलग होगा। उस लॉजिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एनालाइज करना इन दोनों में। अगर सेम है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, सेम है तो क्या हो रहा है, अलग है तो क्या हो रहा है। उसके बाद नाम दिया गया। नाम तो यहां से पढ़ाना भाई। अरे क्या पोलर होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पोलर बोला गया? बताइए। इल्हाम, खदीजा, रशिता बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के वजह से पोलर। हाँ हाँ, तो पहले क्या आया? पहले पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद नाम आया। उल्टा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मार्केट में उल्टा। क्या साइंस पढ़ रहे हैं? कंसेप्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ेंगे, है ना। चलिए लिख लेते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। इज एवरीवन डन? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। लिख लिया तो आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अगला टॉपिक क्या आएगा? अगला टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको भी देखिएगा, हम वापस से ले जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल्स। 3 टाइप तो हमने बताया ना। मास्टर आधा जब अपना बताता तब नहीं बोलता मास्टर। मास्टर तो फिर कहे के लिए ऐसे पढ़ाया? क्यों पढ़ाया ऐसे? ऐसे क्यों पढ़ाया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्यों पढ़ाया? वहां से समय और वक्त, समय और वक्त होता है हर चीज का। समय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान दीजिए प्लीज राइट। A covalent bond formed by one-sided sharing of electrons. One-sided sharing of electrons. देखिए एग्जाम्पल है इसका। Let us suppose I have atom A. Atom A has extra electrons. I show this extra electron like this. Pair of extra electron, and B atom it has vacant orbital. Orbital इसका क्या है? खाली। तो A के पास ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कभी भी अच्छा नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एंड चार्ज इज नेवर गुड। कभी भी चार्ज अच्छा नहीं, चार्ज इज वेरी बैड फॉर स्टेबिलिटी। और बी बोल रहा है भाई मेरा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल, आई हैव वेकेंट ऑर्बिटल, माय ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। तो ए बोला अच्छा ठीक है। बी उससे बोला, बी बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये एक काम कर, इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, मेरा जो है वेकेंट ऑर्बिटल वो फिल हो जाएगा। ये बोला अरे भाई हम इलेक्ट्रॉन तो दे दे, लेकिन हम ए और बी ने समझौता किया, ठीक है भाई चल ए बी को दे देगा इलेक्ट्रॉन, ए इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन टू बी, बट दोनों शेयर करेंगे, बट दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इस तरह का बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अगेन सी कोवेलेंट वर्ड से ही समझ में आना चाहिए आप लोगों को, दैट इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। अरे समझिए ना, बात को समझिए, बात को समझिए। देखिए आपके स्कूल में, आपके क्लास में 3 टाइप के रिलेशनशिप्स होंगे। मतलब बच्चों के अंदर जो दोस्ती होगी वो 3 किस्म की होगी।
समझिए, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास दो स्टूडेंट है ए और बी, पहला सिनेरियो ले लीजिए ए और बी, दूसरा सिनेरियो में भी ए और बी, और तीसरे सिनेरियो में भी ए और बी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा तो ध्यान से। यहाँ पे ए लेके आया है कुछ नहीं, ये आया खाली हाथ, गुंडा लेके, गुंडा ए खाली हाथ। बी के पास है स्केल, शरीफ सा बच्चा, साइड पार्टेड एकदम बिल्कुल है ना, तेल लगा के बस शरीफ सा बच्चा आया। स्केल, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, रबर नहीं, रबर नहीं, इरेजर, और कटर नहीं, कटर नहीं, शॉर्पनर, है ना। आप लोग तो शॉर्पनर वाले स्टूडेंट्स हैं या कटर वाले स्टूडेंट हैं? कोई है कटर वाला? रबड़ वाला कोई No, स्टूडेंट है? sir. रबड़, रबड़ वाला, रबड़, या इरेजर वाले हैं? सारे सारे इरेजर वाले हैं। अब्दुल Yes, हमीद sir. आपके सारे इरेजर Yes, वाले ना, sir. अभी तो सारे इरेजर, रबड़ वाले नहीं है, रबड़ वाले स्टूडेंट सही रहे। स्केल, पेन, पेंसिल, सब। ए कुछ नहीं लेके आया, मास्टर ने बोला सारा स्टोन बॉक्स निकालिए अपना, है ना, पेंसिल बॉक्स निकालिए सारे को, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। बी ने बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाला, शरीफ सा बच्चा। ए ने उसका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया, सारा अपनी तरफ कर लिया। ला भाई दे दे, ला भाई दे दे। ठीक है, पहला सिनेरियो। ठीक है, पहला सिनेरियो। फिर ए को बोला जाएगा बुली, ए को बोला जाएगा बुली, है ना। फिर खैर अभी इधर आते हैं, दूसरा सिनेरियो देखिए। ए लेके आए हैं स्केल और लेके आए हैं पेंसिल। ठीक है, बी लेके आए हैं क्या, बी लेके आए पेंसिल, हटा दी पेंसिल, हटा दी। पेंसिल ऐसी चीज है जिसको शेयर नहीं करता। स्केल लेके आए हैं और इरेजर लेके आए। ठीक है, बी लेके आ गए हैं जो एक बुक से पढ़ा रहे हैं सर, और ये साथ में लेके आ गए हैं शॉर्पनर। तो कुछ चीज ए के पास नहीं है, कुछ चीज बी के पास नहीं है, तो उन दोनों ने बोला भाई एक काम करते हैं, दोनों हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं चीजों को, चीजों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो शेयरिंग से दोनों का काम चला। अब देखिए ये जो केस है ना आपका, ये वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस केस, जो पहला सबसे पहला केस। यहाँ पे भी बी के पास सब कुछ है, ए के पास कुछ नहीं है, ए के पास कुछ नहीं है। लेकिन अभी ए ने क्या बोला, ए ने बोला भाई बी हम कुछ नहीं लेके आ पाए, मेरा मतलब रूटीन ही खराब सर गया। ट्यूसडे था, हमने थर्सडे का सर लिया, होता है ना, हाँ या ना बताएं, होता है। ट्यूसडे था, थर्सडे की रख ली। ठीक है, दिमाग से पैदल आदमी थर्सडे की रख दिया, दिमाग से पैदल थर्सडे। तो बोला कि भाई ठीक है चल हम लोग दोनों ही शेयर कर लेते। सारा का सारा यहाँ सामान किसका, बी का, लेकिन शेयरिंग हो रही है किसमें, दोनों में। यहाँ पे सारा का सारा सामान था बी का, लेकिन ले कौन गया, ए। अरे कुछ बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आयनिक दिखा, कोवेलेंट दिखा, Yes, sir. Yes, और sir. कोऑर्डिनेट दिखा Yes, कि नहीं दिखा। ठीक है, तो बस कहानी खत्म। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मतलब बिल्कुल ऐसे आपको नजरों के सामने। स्कूल जाइएगा, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो स्कूल जाइएगा आपको दिखता रहेगा, है ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग, बुली कोई मतलब ऐसे गुंडा टाइप, आयनिक बॉन्ड, है ना। और कोई तो बहुत भले आदमी लोग रहेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भले आदमी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भले आदमी। एक नहीं लाया बेचा तो उसकी मदद करते हैं कि आजा भाई शेयरिंग करेंगे, लेकिन लेके मेरा भाग मत जाइए। पेन दिया, पता चलता है पेन मिलता ही नहीं है फिर किसी से वापस, है। कुछ खास लोग होते हैं ऐसे, है ना। पेन ले लेते हैं, उसके बाद एक हफ्ता एब्सेंट हुआ है किसी के साथ, पेन Yes, मांग लिया sir. किसी ने, हाँ होता है ना। सब मिलेगा आपको केमिस्ट्री के अंदर, सब मिलेंगे। केमिस्ट्री इज रियली, यू इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, देन आपको लोगों से रिलेट करना ही पड़ेगा। 118 एलिमेंट्स हैं और लोग भी इतने ही, कोई दो आदमी सेम नहीं होता है, कोई दो एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ, आपको ह्यूमन इंटरेक्शंस मिलेगा, बहुत मिलेगा केमिस्ट्री में, धीरे धीरे पढ़िए, बहुत आपको मिलेगा ह्यूमन से रिलेशन, मतलब ह्यूमन जिस तरह से इसी वजह से तो सुनिए ना, सुना आपने केमिस्ट्री में यार बहुत एक्सेप्शन होता है, सुना है? बोलो सुना है नहीं सुना है? Yes. एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, है ना, एक्सेप्शन का सब्जेक्ट। Yes, sir. नाउ यार कौन दो लोग सेम होते हैं, आप किसको जान रहे हैं जिंदगी भर, जिंदगी भर तो नहीं, जब तक जिंदगी